Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, Vanshika Sood. So hi Vanshika, how are you doing? Hi, Lavin. I'm doing good. How about you? Yeah, same here, doing good. I'll just set the agenda behind our podcast today. तो जो आज का हमारा मेन फोकस डिस्कशन का रहने वाला है वो यही है. अभी तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं पास्ट में, सो हमने आई एम ग्रेजुएट्स को बुलाया था, और जिन लोगों को एमबीए करने के बाद भी वर्क एक्स है, हमने उनके साथ काफी ज्यादा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे. तो लेकिन इस बार हमने सोचा कि जो अभी इसी साल 2024 के बैच में जिसने अपना एमबीए स्टार्ट किया है, क्यों ना उस गेस्ट को अपने चैनल पर इनवाइट किया जाए और कुछ उनके रियल एक्सपीरियंसेस को हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं कि आईएम की लाइफ कैसी रहती है, कैसे उन्होंने कैट का एग्जाम क्रैक किया, वो कुछ उससे रिलेटेड इनसाइट शेयर करें. तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको पास्ट में एक्सपीरियंस है, वर्क एक्स है 3 साल का, लेकिन अभी शी इज स्टिल परस्यूइंग हर एमबीए. वो अभी अपने फर्स्ट ईयर में ही है. So let's gather some insights from her. So Vanshika, could you tell our audience more about your academic background and about your professional journey so far? Yeah, sure. So, I have completed my Bachelor's of Engineering in Food Technology in the year 2021. So, post that, I started working in Gravy. So, it's basically a startup. We are working for the technical consulting domain. Post working there for around 2.5 years, then I joined IIM Ahmedabad for their PGP FABM program. Okay. So, yeah. Vanshika, as you mentioned that you have got almost 2.5 years of experience. So, what motivated you to, pursue master, to pursue MBA? क्या thought आया? आपने बाहर जाने का प्लान नहीं किया? आप बाहर से एमएसबी कर सकते थे एज यू आर अ बीटेक होल्डर, या फिर गेट भी कर सकते थे एमटेक करने के लिए. तो वो क्या ट्रिगर पॉइंट था, या फिर क्या मोटिवेशन मिली आपको कि यार आपको एमबीए ही करना है? Yeah. So, when I was in my bachelor's, so I got the opportunity to intern with Nestle. ओके. So there, the project allocated to me, it was focused on a consulting side. So it was basically for the strategy formulation for Nestle. So that was the point in my curriculum when I realized that that there are more things to industry than the technical side, because in our bachelor's we are only taught the technical sides of the businesses. So that was the point where I even liked constructing strategies for the I gave my recommendation for the to the Nestle team for the project that they've allocated me. So that was the moment when I realized that I like doing the strategy work. So that was the point. Then I started searching about this particular field where we just have to do the strategy management thing. So there I realized that for the strategy management roles, they are usually required in the consulting industry. Suppose then I decided to go for consulting industry, and I was fortunate enough that after my bachelor's I got into Gravy, that works in the consulting domain only. So there I worked for 2.5 years, and my work there, the 2.5 years there, it made me realize that there are more aspects to the businesses that I still need to learn. For example, the financial aspects of the business, the operational aspects of the business. So those aspects I need to learn, and MBA would be the best course that can help me in gaining those skills. So then I decided to pursue MBA. I prepared for CAT, came here. Great. Vanshika, I would like to know कि यार मतलब आपने कितने साल प्रिपरेशन करी कैट की? क्योंकि यार फुल टाइम जॉब, क्योंकि आपकी आई बिलीव वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब थी और फुल टाइम जॉब थी. Yeah. तो यार फुल टाइम जॉब के साथ कैट जैसे, क्योंकि यार कैट कोई मतलब इजी लेवल के एग्जाम नहीं है, अच्छे लेवल के एग्जाम माना जाता है कैट भी. तो कैट की प्रिपरेशन के लिए मतलब आपने कितने साल डिवोट किए, और क्या मतलब can you tell about your strategies that you implemented? Yeah. So net I spent around 2 hours preparing for 2 years. Sorry, 2 years preparing for CAT. So just when I was in my bachelor's in the final year, so nobody is sure, because our batch was the COVID batch. So nobody was sure how the placement would look like. So CAT was my backup option for that time. So then during my last year, I used to prepare 6 to 7 hours a day for the CAT exam. So, but when the day came, so I couldn't perform on the
D-Day. So yeah, so my percentile was not that good, but it was okay. It was around 91 percentile. Yeah, 91. So Okay. I was not able to get the, like, I always wanted to do MBA from a premium institute. So Mhm. I was always like sure that I want to do it from either A, B, or C. So others were not in my list. So I went for the placements. Then I got into Gravy. So after that, like during my life at Gravy, so there was, like, as it was a consulting role, so we used to spend like 10 to 11 hours a day in the office. So I used to prepare early in the morning. So I used to wake up at 4. I used to study till 6:30. Then I used to go Mhm. to gym. Then I used to go to the office. Then came there from like 9 or 10 p.m. Then I used to sleep by 11, late to late. So one thing that helped me in my journey was that my office was like just 10 minutes away from my home. So Okay. I used to live like in my home. So there was no extra task that I had to do, like for the other working professionals that they have to manage everything. Mhm. So I was just has to do my like basic stuff. So my Okay. parents, like they actually played a very important role in my entire preparation journey. So yeah. ग्रेट। सो वंशिका, लाइक इस जर्नी में आपने कोई कैट की कोचिंग भी ली थी, या फिर डिस्टेंस लर्निंग कोई प्रोग्राम था, या फिर इट वाज ऑल सेल्फ स्टडी? Yeah. So for the fourth time, in when I was in the fourth year, I did opted for a coaching institute. So I joined EduCorp. It is in Chandigarh, Sector 35. ओके। So that, yeah, I joined EduCorp for 1 year. After that, I did, because I was clear with the concepts, every like concepts part. I knew that I'm clear, but all I needed was more practice and more like for CAT. It is not mandatory to attempt whole paper, but you have to attempt it in a way that you get the most correct answers, so as to get a decent percentile. So for the CAT, I believe smart work and hard work both plays very important role. ओके। So for the hard work part, I already did in my last year. For all the like, I used to spend a decent amount of time learning the concepts and stuffs. So moving forward during my like working professional day, so I only took mock test series and sectional test series from like Times, IMS. So I used to give these test series and used to analyze the results, like which topic did I perform well and which topic needs more improvement. So I used to like follow up the analysis and do more practice for the stuff where I need to put more effort. ओके। Yeah. ग्रेट। सो लाइक जब आपने लाइक आई बिलीव 2023 का आपने कैट एग्जाम दिया होगा ना, जो आप जिसकी हेल्प Yeah. से अभी आपने Yes. Yes. 2024 में एडमिशन लिया Hmm. है, ठीक है? 20. हाँ, तो यार वो एग्जामिनेशन हॉल का यार वो प्रेशर बताओ थोड़ा ना, क्योंकि मैंने भी लास्ट एग्जाम अपना जो लास्ट मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई अपीयर्ड वाज बैक इन 2020 ड्यूरिंग कोविड। सो मैंने गेट क्लियर किया था 2019 में भी, 2020 में भी। लेकिन 4 साल हो गए अब यार, कोई ना वो एग्जामिनेशन हॉल वाला मेरे को जानना है अभी, फ्रॉम अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव, ठीक है? तो वो कैसा वो स्ट्रेस रहता है? क्या वो एक बर्डन लेके आप जाते हो कि यार अब मेरे को स्विच करना है, मेरे को आई हैव टू रीस्टार्ट माई जर्नी अगेन, मैं जॉब से मैं एमबीए वाली जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो क्या बर्डन रहता है, क्या कोई स्ट्रेस रहता है? वो एग्जामिनेशन हॉल के बारे में थोड़ा बताइए। Yeah. So I remember मेरा slot मॉर्निंग स्लॉट था अराउंड 8 o'clock। मैंने रिपोर्ट किया था, तो सुबह सुबह ठंड ऐसे नवंबर में था तो काफी हम्म। ठंड में थी। तो उसमें ऐसा था कि मतलब फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, सिंस मैंने 2021 में भी अटेम्प्ट किया था और हम्म। 22 में भी अटेम्प्ट किया था, तो फिर मतलब आई न्यू कि वेन एवर आई यूज टू फील द प्रेशर थिंग कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, ऑलवेज द रिजल्ट गॉट मेस्ड अप। हम्म। क्योंकि तुम एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाते हो, यू ओनली थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। तुम्हें प्रोसेस भी देखना है कि फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट तुमको उस प्रोसेस से भी यू हैव टू गो थ्रू। तो हम्म। आई थिंक प्रेशर वाली सिचुएशन में मैंने हमेशा मेसअप किया चीजें। तो 23 में जो मैंने अलग चीज की थी, वो ये थी कि मैं बहुत चिल मोड में गई थी, ओके। कि मतलब सुपर चिल, कि यार मतलब आई वाज होपिंग कि हो जाए, बट मैं ऐसा भी था कि अगर नहीं भी होगा तो वर्ल्ड वुडंट एंड हियर, दूसरे मेथड्स भी है मुझे। तो आई वांटेड टू डू एमबीए फॉर एनहांसिंग माय स्किल्स। तो बहुत और कोर्सेज भी है मेरे पास, बहुत और ऑप्शंस भी हैं। तो हम्म। मेरे में क्लियर थी कि ये नहीं है कि मेरे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो आई जस्ट गो like whatever preparation I've done, उसके basis पे I'll give my CAT, उसके बाद I will see result क्या आएगा। So it was entirely process focused this time. So हम्म।
बाकी एग्जामिनेशन हॉल तो सही होता है। आई मीन मतलब वहाँ पे ऐसा भी होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ कैट है। ऐसा होता है कि मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हम्म, फ्रेशर्स भी होते हैं। जैसे जब हम लोग इनरोल करते हैं तो दे आस्क फॉर योर डीओबी। तो आई वाज लाइक, मेरे आगे वाली लड़की थी, वो थी 2003, मैं थी 99। तो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे थोड़ा फील भी हुआ कि इज इट टू लेट कि जेन्युइनली में तो वहाँ पे कुछ कुछ लगा था, बाकी बाकी इट वाज ऑल ओके। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक वंशिका, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, कि यार जो हमारे व्यूअर्स आपकी जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप जो यंग ग्रेजुएट्स भी हैं या फिर इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर ट्राइंग टू मेक अ स्विच, तो उनके लिए यार आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज बताना चाहोगे? ठीक है, अपनी जर्नी से भी आप यू कैन टेक द इनसाइट्स, और कुछ, क्योंकि यार एक्सपीरियंस यू आर स्टडिंग एट आईआईएम, तो यार वो एक एक और एक स्टैंडर्ड रहता है। तो यार आप क्या सजेशंस देना चाहते हो उन्हीं सभी एस्पिरेंट्स को जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि यार इन इन स्ट्रेटेजीज पर सारा इंपॉर्टेंस रोल रहता है, और कोई भी अपना सक्सेस मंत्रा इफ यू वुड लाइक टू शेयर टू आवर ऑडियंस? हाँ, तो मतलब एक जो चीज़ मेरे को हेल्प की थी बहुत ज़्यादा, वो थी कंसिस्टेंसी। हाँ। मतलब मैं बहुत कंसिस्टेंट थी अपने एफर्ट्स के साथ। जैसे कि मैंने बताया 21 में भी आई प्रिपेयर्ड, मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था, बट द रिजल्ट्स डिडंट टर्न आउट दैट गुड। तो बट मैंने इसे छोड़ा नहीं था। आई यूज्ड टू डू छोटा-छोटा रोज़ कुछ भी। मतलब बीट भी न्यूज़पेपर रीडिंग, वीआरसी में वही हेल्प करती है। तो कुछ भी, बट ऐसा एक भी दिन नहीं था जहाँ मैंने कुछ भी ना किया हो अपने कैट के लिए। ठीक है? इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि तुम्हें कैट की प्रिपरेशन के लिए कैट का सामान ही पढ़ना है। जैसे मैं जब आई वाज वर्किंग इन ग्रेवी, तो मतलब आई आल्सो यूज्ड टू फोकस ऑन माय वर्क वेरी मच, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके इवन इफ कैट ऐसा है कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन फॉर यू गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज। उसके बाद यू हैव टू लाइक गो थ्रू इंटरव्यू आल्सो। सो एट दैट टाइम, क्योंकि इफ यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स कि तुम एकेडमिकली अच्छे हो, और वो उन लोगों को भी पता है कि यू आर एकेडमिकली गुड, तभी तुम उनके सामने बैठे हो। उसके अलावा वो सब कुछ पूछेंगे तुमसे कि हाँ, अगर इफ यू आर 23, तुमने आज तक क्या क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, कितनी क्रेडिबिलिटी से किया है। तो वो सब भी होता है। तो इसलिए सिर्फ कैट ही फोकस, वेन एवर लाइक फॉर स्पेशली फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, केवल कैट ही फोकस नहीं रखना होता है। तो कैट के साथ साथ जो और चीजें भी वो कर रहे हैं उस पर भी इक्वली फोकस रखना होता है। बीट अगर कोई फ्रेशर है तो उसको अपनी स्टडीज को भी उतना ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ही मोस्ट लाइकली भी आस्क दोस अराउंड हिज क्वेश्चंस अबाउट दैट। ओके। आफ्टरवर्ड्स जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको तो अपने रिज्यूम के साथ बहुत थॉरो होना पड़ता है। लाइक एवरीथिंग यू मेंशन्ड इन योर रिज्यूम इज बीइंग कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, एनीथिंग। और प्लस जनरल नॉलेज फॉर द फ्रेशर्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट, कि जीके दे टेस्ट देम ऑन जीके, कि कितने अवेयर हैं वो, जहाँ से आ रहे हैं, जिस स्टेट से आ रहे हैं, उस चीज के बारे में भी काफी आ सो एक बेसिक डिफरेंस भी है कि फ्रेशर्स और मिड लेवल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए दे आर मोस्ट इन द पैनल, मोस्ट लाइक मोस्ट इन मोस्ट केसेस दे गो फॉर द जीके एंड द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट। बट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास डिसेंट एक्सपीरियंस है वर्क एक्स का, से 2.5 years, so they usually ask them upon their work experience. Since अब हम लोगों के पास थोड़ा a decent amount of work experience होता है, तो they know कि ये they'll be earning good also in some cases. Yeah. So they are also, they grill you on that कि why you want to take a break for 2 years course, leave your salary, and then like, and then again you want to go back to the corporate world. So they grill you a lot on that, and because as panelists they also want to select those students who are generally interested in the course. यूजुअली क्या कंटेंशन आउटसाइड, मतलब आईएमए के बाहर भी यूजुअली क्या कंटेंशन रहता है लोगों का कि इन इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद यू गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ पैकेजेस, मनी इज एवरीथिंग। बट सिंस यहाँ पे आने के बाद जो मेरा परसेप्शन भी बहुत चेंज हुआ था यहाँ पे, और प्रोफेसर मतलब जो पैनलिस्ट होते हैं उनको तो ये चीजें पहले ही पता होती है कि यहाँ का करिकुलम ही ऐसा होता है कि सिर्फ मनी की मोटिवेशन तुमको नहीं जिंदा रख पाएगी कि तुम पूरा कोर्स कंप्लीट करो। देयर नीड्स टू बी अदर फैक्टर्स कि तुम्हें जेन्युइनली में इंटरेस्ट है कोर्स में, तो तुम कंप्लीट भी तभी कर पाओगे। ओके। सो दैट्स द केस। ग्रेट। सो वंशिका, लाइक अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि लाइक व्हेन आपने एग्जाम लिख दिया, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ गए, ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल के बाद है, जब ये फीलिंग थी कि यार इस बार तो आई एम गोना क्रैक इट, वो वाली फीलिंग आ गई थी? हाँ, मतलब मुझे आइडिया लग गया था कि अच्छा गया है, तो मतलब हाँ मेरे ओके। को था, अंदर से इंस्टिंक्ट था कि हाँ कॉल्स आ जाएंगे। इस बार यू वर कॉन्फिडेंट इन 2023 कि हाँ, हाँ यार इस बार हो जाएगा? इस बार हो जाएगा, यस। ठीक है ठीक है। तो जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद मतलब यू वर लाइक वो फीलिंग थी या वो गट फीलिंग थी कि यार
यार टॉप ABC में इस बार मिल जाएगा, लाइक जब रिजल्ट आ गया था? नहीं, क्योंकि कैट का यही है कि इट्स एग्जाम जितना अनसर्टेन है ना, योर सिलेक्शन क्राइटेरिया इज आल्सो अनसर्टेन, बिकॉज हम्म, देखो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख बच्चा देता है कैट। सो ठीक है। 99 परसेंटाइल अगर हम कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेटली 2000-3000 स्टूडेंट गेट अबव 99 या 99%। तो ओके। अब उन 2000 में बच्चों में से IIMA में 400 बच्चे, बैंगलोर में आई थिंक 600 का बैच है, तो ऐसे ऐसे करके ड्रिल डाउन नैरो डाउन होता रहता है। हम्म, तो एक बार परसेंटाइल अगेन आना इज डिफरेंट, इंटरव्यू प्रोसेस इज डिफरेंट, एंड बीइंग इनटू दैट इंस्टीट्यूट एंड स्टडी MBA इज होल लॉट ऑफ डिफरेंट। तो ओके। बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं ये। तो वंस तुम्हारा परसेंटाइल आ गया, यू गेट हैप्पी फॉर द मोमेंट, बट उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें और भी पढ़ना है, क्योंकि और भी लोग होते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। सो ट्रू। और भी तुम्हारी फिर और उसका मतलब तुम्हें डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे तुम वहां पे, तुम्हारे रिज्यूम में ऐसा कोई एक एक्स फैक्टर होना चाहिए जो तुम्हें बाकी 99 परसेंटाइल से अलग कर रहा है। ओके। That's how you get into that ग्रेट। institute. Hmm. सो लाइक मैं अभी आप लाइक बिफोर दिस पॉडकास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर जर्नी, लाइक कि अभी आप फूड से रिलेटेड डोमेन में आप MBA कर रहे हो अपना। Yes, ठीक yes, है, yes. तो यार उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताओ, प्लस कि यू नो इफ यू कुड टेल अबाउट योर परसेंटाइल, Hmm. एंड यार जब आपके पास कॉल आ गई थी और कि इंटरव्यू में कितने बंदों को बुलाया गया था और फाइनल शॉर्टलिस्ट कितने हुए, एक तो ये, और जो इंटरव्यू में आपकी ग्रिलिंग हुई थी ना, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ कि यार किन किन पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर आपको जज किया, किन किन टेक्निकल डोमेन, टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक हुई, और क्या क्या वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो पैनल आपको ग्रिल करता है, आपको जज करता है, और तब वो फाइनल आपको फाइनल आपको ग्रीन फ्लैग देता है कि हाँ यू हैव बीन एडमिटेड टू IIM। तो पैनल मतलब कि ऐसा है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा कोर्स है FABM वाला, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल MBA प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर में एवरीथिंग इज कॉमन, बट सेकेंड ईयर में भी सिंस मेरा स्पेशलाइजेशन है फूड एंड आई एम फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर दिस प्रोग्राम फर्स्ट थिंग। तो ओके। बिकॉज मैंने जो मेरा ग्रेवी में काम था वो भी दैट वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू फूड इंडस्ट्री ओनली, सो ओके। आई wanted to be in this industry only. So first year में we study everything like general MBA के सारे subjects. In the second year we have the choice to go for we have to take like 60 or 70% of the food industry subjects, and 30% we can opt for general, like any general subject. So that is the course about. उसके बाद इंटरव्यू के दौरान लाइक फॉर द इंटरव्यू पार्ट लाइक मुझसे ज्यादा, सिंस मेरे पास 2.5 साल का वर्क एक्स था, मेरे वर्क एक्स के राउंड था मेरा इंटरव्यू। तो ओके। दे वर लाइक ग्रिल्ड मी ऑन दिस की मतलब एक फैक्टर मेरे में ये भी था कि सिंस मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत पास था और आई वाज हम्म, अर्निंग अ गुड अमाउंट, तो पहले उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी, तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे है। तो द पैनल वाज वेरी शॉक्ड कि यू हैव नेवर बीन आउट ऑफ योर होम टाउन, लाइक माय कॉलेज वाज आल्सो इन चंडीगढ़, माय वर्क वाज आल्सो देयर। सो व्हाई यू वांट लाइक एट दिस पॉइंट व्हेन यू आर अर्निंग सो गुड, you are leading a team of 3, so like you mentioned, then they were like, why you want to stop all this, go out of your comfort zone, of your luxury zone, get into a college like IIMA where everything is so rigorous. So they grilled me a lot, like around 30 minutes they grilled me a lot. Why they are not able to understand why you want to come here, why you want to come here, this is not a good even the panelists said this doesn't seem to be a good decision, either financially भी lucrative नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए काफी थी, अराउंड 50 lakhs की पड़ रही थी मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम्म, सो देवर लाइक कि ये तो फाइनेंशियली भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि कोई मतलब रैशनल क्या है इस चीज के पीछे। तो हमारा हम्म, काफी डिस्कशन हुआ था, तो फिर लाइक आई टोल्ड देम कि MBA वाज ऑलवेज ऑप्शन 1 फॉर मी। इट्स जस्ट कि मेरा पहले नहीं हो पा रहा था, तो आई गॉट इनटू वर्क लाइफ एंड स्टफ, बिकॉज आफ्टर माय इंटर्नशिप में क्लियर थी कि मुझे MBA ही करना है। ओके। तो इस पे हमारा डिस्कशन था, देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय मोटिवेशन की ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम्हारे काम में नहीं मिल पा रहा और तुम MBA करके सीख लोगी। तो देयर वर थिंग्स दैट मुझे जो फील होता था मेरे काम में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी। सपोज एक प्रोजेक्ट में कोई चीज थी जो ऐड ऑन हो गई, से फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ है, तो क्लाइंट ने पूछा तो हम वो चीज कर देते थे, बट वो क्लाइंट बहुत ज्यादा क्लाइंट डिपेंडेंट लर्निंग थी। तो हम्म, मुझे वो गैप्स दिखते थे कि एज अ कंसल्टेंट या तो तुम लोगों तुम्हें होल इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन था पैनल पे इसके साथ। उसके अलावा उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, मेरी टेक्निकल नॉलेज चेक की थी, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे थे कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा पूछे थे कि क्या कैसे होता है। जैसे मैंने मतलब मुझे ब्लॉग्स भी बहुत लिखे थे अपने हम्म,
ड्यूरिंग माई वर्किंग टाइम इन ग्रेवी, तो मेरे ब्लॉग्स खोल दिए थे उन्होंने सारे। तो एक ओके एक ब्लॉग के बारे में दे रैंडमली स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि इसमें ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों होता है इंडस्ट्री में, यही टॉपिक क्यों चूज किया, तो ऑल दो स्टफ। ये okay great so yeah moving on to another aspect of our podcast here could you share your views on a day in a life of a IIM graduate तो यार आईएम की लाइफ कैसी रहती है आई नो यार अभी आपको 3-4 महीने का ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी आईएम में तो वो ही 3-4 महीने के एक्सपीरियंस पर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यार क्या क्या चेंजेस आए ठीक है और क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आप आए थे और अभी रियलिटी क्या है थोड़ा बहुत मिसमैच तो आता ही है हर इवन अगर हम जॉब भी करते हैं तो भी मिसमैच होता है अगर हम कोई भी कोर्स करने आते हैं तो भी मिसमैच होता है जगह का भी मिसमैच होता है तो क्या क्या आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे अहमदाबाद चंडीगढ़ से अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर निकल रहे थे ठीक है और हाउ डिड दिस कॉलेज दिस सिटी treated you welcomed you so I would like to know your thoughts on this So this city wise तो अहमदाबाद इज वेरी गुड प्लेस, पीपल आर वेरी स्वीट। हम्म तो थोड़ा सा फूड के लिए डिफरेंस था कि यहाँ पे बहुत ही मीठा खाते हैं लोग, हम लोग इतना मीठा नहीं खाते हैं। जैसे हाँ जैसे स्टेपल फूड पंजाब में क्या होता है, राजमा कढ़ी ये सब, तो हम्म यहाँ पे भी दे ऐड शुगर इन दोज थिंग्स। सो वो थोड़ा सा एक मिसमैच था मेरे लिए। बाकी हाँ, एक्सपेक्टेशंस के तौर पे आई न्यू कि मैं बहुत अच्छी जगह पे जा रही हूँ, मुझे बहुत एक्सपोजर मिलेगा, मतलब बेस्ट ब्रेन्स आएंगे इंडिया के वहाँ पे, तो वो मीट हो गई थी एक्सपेक्टेशन। बट हाँ, मुझे भी पता था कि डिफिकल्ट है। पीपल आउटसाइड ए यूज टू से कि आई एम ए में ए स्टैंड्स फॉर एकेडमिक्स, तब हम कहते थे अच्छा ठीक है। बट व्हेन आई लाइक केम इन तो मुझे उस चीज का एसेंस पता चला कि क्यों बोलते थे। तो ओके यूजुअली आई एम ए में द डे स्टार्ट एट लाइक 8 AM और 8:30 AM फॉर सम, क्योंकि हमारी 8:45 पे फर्स्ट क्लास होती है। ओके तो फॉर 8:45 मीन्स 8:45 यू कैन नॉट बी लेट बाय 1 सेकेंड, डोर्स क्लोज हो जाते हैं। हम्म तो डे स्टार्ट होता है, देन वी हैव क्लासेस टिल 1:10। आफ्टरवर्ड्स हमारा लंच के लिए वी गो फॉर लंच एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड सरप्राइज क्विजेस हियर हम्म इन आईएमए। सो 1:45 इज द टाइम व्हेन यू विल गेट अ मैसेज और एक नोटिस बोर्ड होता है मेस के बाहर, या वहाँ पे एक इंडिकेशन होगी कि तुम्हारा आज सरप्राइज क्विज है एट 2:30। सो मतलब, और तुम्हें नहीं पता है वो किसी चीज का भी क्विज हो सकता है तुम्हें लास्ट क्लास में वो पढ़ाया हो और उसका क्विज है तुम्हारे 2 घंटे बाद। मतलब इट कैन बी एनीथिंग, यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम कुछ छोड़ नहीं सकते हो गार्ड्स को देखे तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे सबके सारे 400 के 400 बच्चों के हार्ट बीट्स ऐसे होते हैं कि होगा कि नहीं होगा। जिस दिन होता है तो आई कैन सी मेस में ना बच्चे प्लेट्स लेके भाग रहे होते हैं इधर उधर कि यार क्विज है, अभी खाना रखना पड़ेगा, अभी वी हैव टू स्टडी एंड स्टफ। तो एक ये चीज होती है। उसके बाद यूजुअली हमारा क्विज अगर होता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं अराउंड 3:34 के अराउंड। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो वो कर आई थिंक 6 o'clock होते हैं, फिर से हासिल स्टार्ट होते हैं, अगले दिन के प्री रीड्स होते हैं, तुम्हारी प्लेसमेंट एक्टिविटी से कुछ होता है या तुम्हें और कोई एक्टिविटी करनी होती है। तो 6 से स्टार्ट होते 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 आई थिंक 3 या 4 बज जाते हैं सुबह के। फिर उसके बाद उस टाइम हम सो जाते हैं, देन अगेन 8 o'clock वी स्टार्ट एंड स्टफ स्टफ स्टफ। फॉर द वीकेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं होती है। फॉर द फर्स्ट ईयर क्लासेस नहीं होती है, सेकेंड ईयर में हो सकती है। तो ओके फर्स्ट ईयर, और यूजुअली फर्स्ट ईयर इज मोर डिफिकल्ट देन सेकेंड ईयर बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, अकेड्स का भी बहुत प्रेशर होता है, अराउंड 33 सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट ईयर में। हम्म तो मतलब कि काफी वो होता है। और सिंस अलग अलग बैकग्राउंड से, जैसे मैं बीटेक से हूँ, तो आई हैव टू स्टडी फाइनेंस सब्जेक्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक स्टफ। सो उसका मुझे बेसिक से ही आइडिया नहीं है। तो हम्म वो एक थोड़ा सा मिसमैच भी हो जाता है। तो तुम लोग जो नॉन मतलब कि सिमिलर बैकग्राउंड से नहीं है सब्जेक्ट के, तो उसको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ता है। ओके बाकी यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव होते हैं। यहाँ पे वी हैव रेम सेशंस, रेमेडियल सेशंस। सो ओके इफ समवन इज अ सीए, वो क्लास के बाद तुम्हारा रेम सेशन लेकर रात में 11 बजे 12 बजे, जहाँ पे वो सारी क्लास को पढ़ाएगा, बैलेंस शीट क्या है, कैसे हो रही है। सेम विद इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तो कोई इंजीनियर्स यूजुअली मैथ्स के रेम सेशंस लेते हैं। तो ओके ऐसा चलता है, एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं। तो काफी लर्निंग काफी ज्यादा सही होती है, मतलब क्लास में ना हमारा यू गेट मार्क्स फॉर पार्टी क्लास पार्टिसिपेशन एज वेल। सो हर कोई बहुत एक्टिव रहता है क्लास पार्टिसिपेशन में। और मतलब एक टॉपिक को तुम, ऐसा होता है 90 ब्रेन्स आर रनिंग फॉर दैट टॉपिक और 90 न्यू डायमेंशंस दिखती है तुम्हें उस टॉपिक की। तुम ऐसे भी सोच सकते थे उस टॉपिक को, एक हम्म बैच में 90 बच्चे होते हैं।
ओके। तो ऐसा रहता है। बाकी तो यूजुअली हेक्टिक रहता है, फर्स्ट ईयर तो काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है, मतलब मैं भी काफी शॉक्ड हुई थी, मतलब मुझे आई थिंक 1.5-2 महीने लग गए थे इस, क्योंकि सिंस मैं आई एम अर्ली राइजर, तो हम्म। मेरे लिए चीजें होती थी कि मैं 2 बजे उठना ज्यादा प्रेफर करूंगी 2 बजे तक जागने से। बट ओके। सिंस यहाँ पे वर्ल्ड ही आई एम एक अंदर चलता ही ऐसे है कि रात में ही करते हैं सब कुछ सब लोग, तो आई हैव हम्म। टू चेंज दैट थिंग, तो उसमें मुझे अडाप्ट करना पड़ा था। ओके। तो काफी कुछ नया है सिंस। ग्रेट। So moving on to our last aspect of this podcast, Vanshika. हाँ So यार, like you have given a decent amount of time at Gravy, working at Gravy. तो यार, आप हमारे viewers को थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि यार वो 2.5 साल के एक्सपीरियंस ने कैसे आपको शेप किया, आपके फ्यूचर एस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक है, और कैसे हाउ द टीम एट ग्रेवी सपोर्टेड यू, और क्या क्या पॉजिटिव्स थे जो निकल के आए उस 2.5 साल के एक्सपीरियंस से। हाँ, तो ग्रेवी में भी बहुत सपोर्टिव थे लोग, मतलब माय मैनेजर, एचआर, माय टीम लीड्स, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जैसे मुझ में आई, मुझमें वो आफ्टर ग्रेवी आई थी, कि मतलब ऐसा होता है कि थॉट्स तो सबके मन में आते हैं, इट मैटर ऑफ फैक्ट कहाँ पे आता है, चेंज कहाँ पे आता है, द वे यू प्रेजेंट योर थॉट्स, हाँ। कि तुम कैसे स्ट्रक्चर में बता रहे हो कि सामने वाले को समझ भी आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट रैंडम ब्लैबरिंग। तो ग्रेवी में मुझे वो बहुत ज्यादा हेल्प किया था कि आई हैड दिस थिंग, मतलब मुझे हमेशा से क्रिएटिव थिंकिंग ये सब चीजों का बहुत शौक था। तो व्हेनेवर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो मेरे को पास ना ऐसे 36 आइडियाज आते थे कि मुझे उसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हम्म। और मुझे हमेशा चीजें अनकन्वेंशनल करनी पसंद थी, कि मुझे कुछ न्यू एलिमेंट डालना ही होता था। तो हम्म। दैट्स वेयर ग्रेवी हेल्प मी टू टोन डाउन दोज आइडियाज, कि ओके। अगर तुम्हारे पास इतने सारे आइडियाज है तो उसको फिल्टर कैसे करना है, कौन से टॉप 3 है जो तुम आगे अपने टीम लीड के साथ डिस्कस करोगे, और कौन सा उसमें से एक है जो तुम एक डिसाइड कर सकते हो। तो ओके। उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, प्लस ग्रेवी में जैसे मुझे लीडरशिप के लिए भी काफ़ी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मेरी काफ़ी एनहांस हुई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे टाइम में टीम आ गई थी। तो आई ओके। यूज्ड टू मेंटर 3 एनालिस्ट। तो मतलब बहुत मतलब ऐसा क्या होता है कि जब व्हेन यू आर वर्किंग मेंटरिंग समवन, तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग दोस पर्सन्स, यू स्टार्ट गेटिंग इन देयर शूज, कि अगर हाँ। मुझे उनको कोई टास्क बताना है, या मतलब कि उनसे कुछ काम करवाना है, या फिर उन, तो फिर मुझे ना उनके थॉट को जानना पड़ेगा, उनको एसेंस समझाना पड़ेगा कैसे करना है, क्यों करना है, फिर उनका व्यू पॉइंट की भी रिस्पेक्ट उतनी ही रखनी पड़ेगी। तो हम्म। मतलब कि काफी अच्छा लग था, मतलब काफी अच्छा लगता था कि जैसे कि ना उस, जो बॉन्ड मेरा मेरी टीम के साथ था, मतलब वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो ओके। मतलब हम लोगों का ऐसा होता था कि हम कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे, तो जैसे, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था कि ग्रेवी में मतलब मैंने सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं ग्रो किया, पर्सनली भी मेरे काफी अच्छे रिलेशन थे, काफी अच्छे। मतलब ग्रेट। मुझे अभी भी याद है जब मेरा लास्ट डे था ग्रेवी में, तो मैं तो रो ही रही थी, मेरी ओके। टीम भी रो रही थी बहुत ज्यादा। ओ। मतलब और या तो और ऐसा भी था कि जैसे हमारे ग्रेवी में यूनिट्स होते थे अलग अलग ना, तो हम्म। मेरे यूनिट के लोग तो बहुत ही परेशान थे, और जो अक्रॉस यूनिट के लोग थे ना, जो मेरे लिए एसआरए थी, मैं तो और भी एसआरए थे, उनके जो सब मेंटीज थे, दे ऑल्सो रॉट मी दिस इतने बड़े बड़े लेटर्स, ओ। लेटर्स। हाँ, तो मैंने वो ग्रेट। सब संभाल के रखा हुआ है, तो मतलब वो और चीज इमोशनल हो गई थी मेरे लिए, काफी इमोशनल मोमेंट था ग्रेवी छोड़ना, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो आई ऑलवेज से कि मैंने प्रोफेशनली प्लस पर्सनली बहुत अर्न किया है ग्रेवी में से। ग्रेट। ग्रेट। तो ओके। So, Vanshika, we will keep this session short. Future में, definitely my best wishes are with you, and all the very best for your future endeavors. Or, I I also wish you luck for your, summer internships that are, coming on the way. थैंक And यू। yeah, and I am, definitely 100% sure कि यार आप बहुत अच्छा, पैकेज बैक करोगे IIM अहमदाबाद से, ठीक है, और चंडीगढ़ का भी और हमारे ग्रेवी का भी आप नाम करोगे, ठीक है। So with this, I'll conclude this podcast, ओके, and all the very best for your, for your sharing your time, for sharing your valuable insights to our viewers, and good luck. Thank you so much. थैंक यू लविन, थैंक यू। ओके, Yeah. ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल, एंड Thank टू you. ऑल अदर एस्पिरेंट्स जो देख रहे होंगे। Yeah. Thank you so much. Bye bye. बाय बाय।